Dear students, welcome to another session of Introduction to Computing and Social Media. Today the topic is how to blog, part 1. Actually, we are going to discuss some tips and tricks for blogging. What we are going to learn is how to name your blog, and after that we are going to see to blog or not to blog. Actually, who should blog and the reasons to blog and reasons not to blog. Then we are going to discuss some top mistakes of bloggers which we should avoid to be a successful blogger. Then we are going to discuss the importance of your blog and social media marketing accounts, for example Facebook business page, Twitter, and else. Then we are going to discuss blogging for the beginners about comments, how to moderate comments. Comments are very important to our blogs. It is also a content that is generated by other people for us, so we cannot disallow the comments. We should allow comments, but we have to moderate them for language, for other reasons we are going to discuss. Then we are going to discuss how we can earn money from your blog. Monetizing is earning money by uh, Google AdSense and affiliate programs. And in the end, we are going to discuss blogging for our target market, how to find the target audience and stay true that target audience. Dear students, let's start by naming your blog. The importance of choosing the right name for your blog should not be overlooked. Remember, there are two different type of blog names. First, there is the name you choose for actual blog. For example, if you are writing a blog about motorbikes, maybe the name you choose fast bikes or anything like that. The second, there is a URL you reserve to host your blog. The www address www.fastbikes.com may not be available to you, so there will be a separate name. The first one is the actual name and the second one is the URL. People can sometimes try to be overly cute or a bit too creative when they name their blogs. Though it is a way to show your creativity, you run the risk of no one knowing what your blog is actually about. A blog's name should immediately convey the central purpose of your blog. This will help in gaining the followers who often look blog directories or search for the blogs by categories online. If someone is looking for a blog about luxury handbags, they will want to see a blog with the name that include any of the following. For example, it should be having a word something like bags, clutches, handbags, hobos, purses, etc. So it can be identified easily. But you may want to be more creative and use a term like arm candy. It may be a good business name but not a good blog name. Business name may be because arm candy नीचे आपके लिखा होगा कि actually arm candy is a handbag shop or something like that. Not all your potential readers will be able to identify the purpose of your blog based on the name, अगर वो arm candy है. Try to be straightforward with your blog's name and use your creativity with the design of the blog and actual content in it. जो आप लिख रहे हैं उसके अंदर क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उसका नाम अजीबो गरीब या ऐसा रखें कि जो समझ ना आए. Secondly, you have to decide a URL for your blog. That is www.myblog.com, fastcars.com, beautifulpurses.com. If possible, you want your blog's URL to be the same as the name of your blog, but this is not always possible, or even in some cases not desirable. कि आपका आइडियल तो ये है कि जो आपका ब्लॉग का नाम है वो ही आपको www के साथ मिल जाए, लेकिन आप लिख सकते हैं ब्लॉग ब्यूटीफुल फास्ट कार्स, आपके ब्लॉग का नाम ये हो सकता है.
तो अब ब्यूटीफुल फास्ट कार्स मैं बेट करता हूँ आपको यूआरएल में नहीं मिलेगा, वो पहले किसी ने रिजर्व करा लिया होगा। तो एक्चुअली इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ गुड ब्लॉग नेम विद सेम यूआरएल, क्योंकि गुड ब्लॉग नेम जो है वो पहले ही किसी ने यूआरएल के अंदर रिजर्व करा लिया होगा। हाँ, यू कैन फाइंड इट समथिंग लाइक दैट veryfastcar.pk, but if you are writing only for the audience in Pakistan, the it should not be the case. Blogging या internet is the thing which made it possible that no boundaries for your business or for your anything you are doing on the internet. तो अगर उसमें भी आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, नैरो माइंडेड हो जाओगे, नैरो ऑडियंस पे आ जाओगे, तो आपका व्यूअरशिप भी नैरो हो जाएगी और इवेंचुअली जो भी आप गेन करना चाहते हैं, फेम हो चाहे वो मनी हो, वो भी नैरो डाउन हो जाएगी। लेकिन आप ग्लोबल रहना चाहेंगे तो ग्लोबल में तो माई फास्ट कार्स, ब्यूटीफुल फास्ट कार्स, इस तरह का डोमेन नहीं मिलेगा, ऑल्दो यू कैन हैव द नेम ऑफ योर ब्लॉग लाइक दैट। तो आपने अब यूआरएल के अंदर कोई कार्स का सिर्फ उसका इंक्लूड करना है। If you want to be creative with the name of your blog, then try to straightforward with URL. अगर आप अगेंस्ट माई एडवाइस आप फिर भी अपने ब्लॉग का कोई क्रिएटिव सा नाम रखना चाहते हैं, तो फिर आपका URL बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू चूज़ द नेम आर्म कैंडी ब्लॉग फॉर द नेम ऑफ योर ब्लॉग as mentioned above, you may want a URL that has handbags or purse in the name. तो फिर आपके URL में हैंडबैग, पर्स, क्लचेस कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, अगर आपने ब्लॉग का नाम लाजमी इस एग्जांपल के हिसाब से हैंड कैंडी रखना है। बिकॉज नॉर्मली पीपल see both the blog's name and the URL when looking in a blog directory or a search engine. Ideally, the straightforward with the name you give your blog and URL it will placed on, but you can choose to be a little more creative with the name of your blog as long as your URL contains the keyword in it. ठीक है, अगर तो आइडियली तो ये है कि आप दोनों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहें। जितना सिंपल नाम जितना सिंपल हो उतना इजी टू रिमेंबर होता है, उतना जल्दी वो एंटर होता है और अपना मीनिंग कन्वे करता है। तो एक्चुअली आपने उस ऑडियंस को अपनी साइट पे या अपने ब्लॉग पे लाना है जो उस मीनिंग में इंटरेस्टेड, जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो नाम से अगर उसको प्रोडक्ट का पता लग रहा होगा तो वो विज़िट करेगा। ठीक है, टेक टाइम टू थिंक अबाउट द बेस्ट नेम फॉर योर ब्लॉग, ट्राई टू चूज़ अ नेम दैट विल स्ट्राइक अ कोड विद योर टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करें, लोगों को आइडेंटिफाई करें और देखें वो किस तरह के नाम लेते हैं और किस तरह के नाम वो अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफन लेस इज़ मोर, जितना ज़्यादा केस मोस्टली इट इज़ रिकमेंडेड कि छोटे नाम हो, एक या दो वर्ड्स के नाम हो ब्लॉग के। ठीक है, अंदर आप जो ब्लॉग हेडिंग्स लिखेंगे, ब्लॉग मुख्तलिफ उसके अंदर ब्लॉग्स लिखेंगे, वो आगे हम कंटेंट राइटिंग पे जब बात करेंगे, पोस्ट की प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे कि पोस्ट कैसी होनी चाहिए, तो उसके अंदर जो हेडिंग्स हम लिखेंगे वो इट कैन बी 5 वर्ड्स 4 वर्ड्स हेडिंग, लेकिन जो मेन ब्लॉग है उसको आप 2 या मैक्सिमम अगर आपने जाना है तो रिकमेंडेड है 3 वर्ड्स तक जाएं। एंड सिंपल इज़ द बेस्ट वे टू गो। ठीक है, लेस इज़ मोर एंड सिंपल इज़ बेस्ट। तो इसको आप ज़रा सा फॉलो करें। नेक्स्ट है जी, टू ब्लॉग और नॉट टू ब्लॉग। इधर हम ब्लॉगिंग फॉर द सेक ऑफ ब्लॉगिंग सिर्फ बात नहीं कर रहे, समटाइम्स वी नीड अ ब्लॉग ऑन अ कमर्शियल वेबसाइट। एक वेबसाइट है जो लेदर प्रोडक्ट्स बेचती है और हो सकता है वो वेबसाइट लेदर की मेंटेनेंस और लेदर की हिस्ट्री और लेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें वो ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा लिखना चाहती हो, तो वो भी हो सकता है। तो अगर तो वैसे ही हम जा ही ब्लॉगिंग के लिए रहे हैं तो फिर तो और बात है, लेकिन अगर हम बिज़नेस हैं और साथ हमें ब्लॉग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट विल डिपेंड ऑन फ्यू सिनेरियोज। टू ब्लॉग और नॉट टू ब्लॉग, दैट इज़ क्वेश्चन वेबसाइट ओनर्स शुड आस्क themselves. Many people rush to create a blog with little purpose in mind and others assume blogging is a waste of time and never try. तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ एक लोग फौरी कहते हैं यार ब्लॉगिंग शुड बी पार्ट ऑफ माई वेबसाइट, एक बिजनेस ओनर है,
नॉन टेक्निकल बंदा है, बस उसने नाम सुन लिया, उसने थोड़ी सी इसके बारे में कई रीडिंग कर ली है और उसने कहा इट शुड बी पार्ट ऑफ माई वेबसाइट, और वो उसके लिए एक्साइटेड है और उसके पास कंटेंट ही नहीं है, उसके पास फ्यूचर प्लान ही नहीं है, 5-6 उसके जहन में टॉपिक्स हैं। तो जब 5-6 टॉपिक्स हों तो फिर ब्लॉगिंग नहीं होती। फिर आप इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिख सकते हैं उन 5-6 टॉपिक्स में, हाउ टू केयर फॉर लेदर, हाउ टू शाइन अ ओल्ड शू, इस तरह के 6-10 आपने आर्टिकल्स लिख दिए, ये ब्लॉगिंग नहीं है, वो एक्चुअली और चीज़ है। और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि कुछ लोगों को ब्लॉग बड़ा सूट करता है उनके बिज़नेस के साथ, लेकिन वो उसको ट्राई नहीं करते और वो वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। तो दोनों चीज़ों के से यानी कि हमें एक एनालिसिस करना चाहिए और फिर डिसीजन पे आना चाहिए। द ट्रुथ इज़ दैट सम बिजनेसेस वुड बेनिफिट फ्रॉम अ ब्लॉग वाइल सम वुड नॉट। तो हमें वो किस तरह पता लगेगा, कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें क्या हैं, लेट्स डिस्कस। ब्लॉगिंग, डू यू हैव समथिंग टू से, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ इज वेदर और नॉट यू हैव समथिंग टू से दैट विल ईदर इन्फॉर्म और एंटरटेन योर टारगेट मार्केट। यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट दैट यू कैन सस्टेन अ ब्लॉग, ठीक है। आपके पास कोई आइडिया है, कोई आप क्रिएटिविटी आपके जहन में है जो कि या तो उनके लिए इंफॉर्मेटिव हो ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस भी एक्चुअली टारगेट मार्केट इज़ ऑडियंस, एक्चुअली आपके जहन में ऑडियंस भी है। अच्छा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए, और मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमएससी की हुई एग्रीकल्चर में। आई एम वेरी अवेयर ऑफ एग्रीकल्चरल अचीव अवेयरनेस व्हेन टू क्या कहते हैं उसको बोलने को हम इंग्लिश में, व्हेन टू मेरे जहन में इस वक्त वर्ड नहीं आ रहा कि कब आपने उसको बीज को लगाना है, और व्हेन यू आर गोइंग टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का वर्ड जहन में आ रहा है, लगाने का इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, व्हाट यू सॉ व्हाट यू रीप, व्हेन टू सॉ एंड व्हेन टू रीप, ये चीज़ें अगर आप मुझे पता हैं, मुझे मेडिकेशन पता है कि कौन सी अगर कोई पेस्टिसाइड यूज़ करनी है किस सिनेरियो में, और मैं सारा कुछ ब्लॉग्स में लिखना चाहता हूँ, तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो फार्मर है, और कितने % फार्मर हैं जो ब्लॉग्स पढ़ते होंगे, ठीक है। तो ये मुझे डू यू हैव समथिंग टू से के अंदर हमने क्या सोचना है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज वेदर और नॉट यू हैव समथिंग टू से दैट विल ईदर इन्फॉर्म और एंटरटेन योर टारगेट मार्केट। तो यहाँ एक तो इन्फॉर्मेशन आ गई, या फिर एंटरटेनमेंट आ गई कि लोग इन्जॉय करें मेरी राइटिंग्स को। अगर वो इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो इन्जॉयमेंट होनी चाहिए, लोग मूवीज़ देखते हैं इन्जॉयमेंट के लिए, लोग नावल्स पढ़ते हैं, तो लोग ब्लॉग्स भी पढ़ते हैं जो उनका इंटरेस्टेड एरिया उसके अंदर इंफॉर्मेशन के अलावा। लेकिन टारगेट मार्केट जो मेरी एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन है, अगर वो फार्मर्स के लिए है तो सॉरी टू से पाकिस्तानी फार्मर एट लीस्ट इन माई ओपिनियन इज़ नॉट वेल अवेयर ऑफ ब्लॉगिंग, और उस तरह की वो ब्लॉग्स नहीं पढ़ता। You need to feel confident that you can sustain a blog. If you have some information but not enough to sustain a blog, you may consider writing or distributing articles rather than writing a blog. ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके पास 5, 6, 7, 8 कोई इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं कि लेदर की आपकी लेदर गारमेंट्स की आपकी वेबसाइट थी, उसके ऊपर आपके पास 5-6 किस्म के लेदर से रिलेटेड, उसकी केयर से रिलेटेड, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड आपके जहन में आइडिया दे, तो आप ब्लॉग ना क्रिएट करें, आप उनके ऊपर आर्टिकल लिख के अपनी साइट का हिस्सा बना दें, उसके ऊपर अबाउट लेदर या नो योर लेदर और इस तरह की कोई हेडिंग का एक टैब बना दें और उसके अंदर वो 5-6 आर्टिकल डाल दें, या आप वो सोशल मीडिया पोस्ट के तौर पे लिखें। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड आइडिया टू क्रिएट ब्लॉग ओनली हैविंग फ्यू आइडियाज़, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी, आपने ब्लॉगिंग करने से पहले आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट, जिस पे मैंने पिछले में भी बता दिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट, हु डू यू वांट टू रीड योर ब्लॉग्स एंड फॉर व्हाट पर्पस। दिस विल हेल्प यू स्टार्ट टू डिटर्मिन वेदर और नॉट दिस टारगेट मार्केट इज़ लाइकली टू फाइंड एंड रीड योर ब्लॉग। जिस तरह मैंने फार्मर्स की एग्जाम्पल दी, एग्जैक्टली वही चीज़ बात इधर हो रही है।
यू डू नॉट वांट टू वेस्ट रिसोर्सेज इन राइटिंग अ ब्लॉग नो वन रीड्स, ठीक है। डिटरमिन द गोल्स ऑफ योर ब्लॉग्स इज़ वाइटल। इज़ योर गोल टू क्रिएट अ रेवेन्यू स्ट्रीम थ्रू एफिलिएट मार्केट? ये हम डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केट क्या होती है। एक्चुअली हमारे ब्लॉग्स के अंदर ही हम ब्लॉग लिखते हुए अगर एक टूल यूज़ करें, फॉर एग्जांपल मैं एक डू इट योर सेल्फ के ऊपर ब्लॉग लिख रहा था कि मैंने एक टेबल खुद बनाई है। उस टेबल को बनाते हुए मैं एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ जो स्क्रूज़ लगा रहा है, ठीक है। और साथ ही मैंने बता दिया कि मैं जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने ये वाला लिया है, वो लिंक दे दिया है, वो अमेज़ॉन पे जाता है। और एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन के साथ एफिलिएट मार्केट की हुई है कि अगर मेरे लिंक से कोई क्लिक करके आपके पास आएगा और वो बाय करेगा तो उसके अंदर मेरा भी एक शेयर होगा। वो अमेज़ॉन भी देता है और भी बहुत सारे वेंडर्स देते हैं आपको वो शेयर, अगर आपकी साइट से कोई क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय करे। अगर बाय करे तो सिर्फ क्लिक करने से नहीं मिलता, वो गूगल एडसेंस से मिलता है, वो भी देखेंगे हम मोनेटाइजिंग में। इज़ द गोल टू इंट्रोड्यूस कंज्यूमर टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन योर वेबसाइट? पहला था कि क्या आप एफिलिएट मार्केट से करेंगे कि लोग वो लिंक्स को फॉलो करते हुए अगर किसी जगह से कुछ बाय करें तो आपको वो कमीशन मिले उसमें से, या दूसरा ब्लॉग का पर्पज़ ये हो सकता है कि आपका अपना एक बिज़नेस है और आप उस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए ब्लॉग्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने सोचना है। इज़ योर गोल टू एनहांस योर सर्च इंजन रैंकिंग? या आपकी जो वेबसाइट है आप उसको अच्छी रैंकिंग में लाना चाहते हैं और उस साइट के ऊपर आपने ब्लॉग लिखा है। ब्लॉग का मतलब है कंटेंट। जितना कंटेंट ज़्यादा होगा आपकी वेबसाइट में सर्च क्यूरीज के अंदर उस कंटेंट से हिस्सा उतना ज़्यादा जाएगा, तो इवेंचुअली वो साइट सर्च के अंदर ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। और ब्लॉगिंग के अंदर ऑब्वियसली आप कमेंट्स भी लेंगे, और कमेंट्स क्या हैं? लोगों की तरफ से शेयर किया हुआ कंटेंट। कमेंट भी तो टेक्स्ट है ना, उसके अंदर जो चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं वो भी सर्च इंजन। समटाइम्स आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपने गूगल पे कोई क्वेरी डाली, सर्च की, तो एक्चुअली जो सर्च रिज़ल्ट आया जब उसको क्लिक करके जाते हैं तो एक्चुअली वो क्वेरी, वो वाला स्ट्रिंग किसी ने कमेंट में लिखा होता है, तो एक्चुअल कंटेंट में वो चीज़ नहीं होती जो कमेंट में निकल आती है, तो वो भी आपकी साइट का हिस्सा बनता जाता है। तो ये कमाल है। तो एक रीज़न ये हो सकती है कि बेसिकली आप अपनी सर्च इंजन SEO इसको का एक पार्ट कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी सर्च इंजन रैंकिंग को अच्छा करने के लिए, उस पर कंटेंट ज़्यादा करने के लिए अपनी साइट का हिस्सा ब्लॉग बना रहे। तो ब्लॉग कैन बी एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, कि एक ब्लॉग है वो ब्लॉग है, और ब्लॉग कैन बी ए पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। तो एक ब्लॉग एक कंप्लीट एंटिटी भी हो सकती है कि मैं ब्लॉगिंग फॉर द सेक ऑफ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और एक हो सकती है कि मेरी कोई बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है उस पर मैंने साथ ब्लॉग शुरू किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक साइट है जो सिटी ऑफ लाहौर के बारे में है, तो उसके ऊपर लाहौर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट्स, शालमी, अकबरी मंडी, और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन तो है ही है जो ओरिजिनल वेबसाइट की फॉर्म में है, ब्लॉग्स की फॉर्म में नहीं है। लेकिन साथ मैंने एक ब्लॉग भी बनाया हुआ है, उस पर मैं गाहे बगाहे लाहौर से मुतल्लिक कोई ना कोई एक छोटी सी राइटिंग शेयर करता रहता हूँ कि आज मैंने जाके लक्ष्मी चौक से जो खाना खाया है तो मैंने वो अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। फिर मैंने कोई चीज़ बाय की शालमी जाके, तो मैंने अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। अब शालमी के बारे में एक पूरी ओरिजिनल वेबसाइट में तो एक कैटेगरी के अंदर मार्केट्स के अंदर जाके शालमी बाज़ार का पूरा हिस्ट्री उसकी ये वो है, लेकिन ब्लॉग के अंदर क्या फ़र्क होगा? मैं अगर उधर क्रॉकरी लेने गया था तो मैंने सिर्फ वो अपना वो एक्सपीरियंस कि क्रॉकरी, हाउ टू बाय क्रॉकरी इन लाहौर के नाम से मैंने ब्लॉग बनाया, और मैंने शालमी में जाने का और उधर बारगेनिंग का तरीका, उधर की एक्सपीरियंस सारा शेयर कर दिया। तो वो मैंने लाहौर की वेबसाइट पूरी है लेकिन उसमें एक ब्लॉग बनाया हुआ है। अब कोई बंदा हो सकता है कि वो लाहौर की वेबसाइट ना बनाए, वो सिर्फ लाहौर के ऊपर ब्लॉग ही बना ले, तो उसने ना हिस्टोरिकल प्लेसेस का वैसे लहदा बनाया है, लेकिन वो जब से ही बादशाही मस्जिद जाता है तो वो उसके बारे में एक राइटिंग लिखता है और एज अ ब्लॉग शेयर करता है। तो इट्स अप टू यू कि आप ब्लॉग को एक वेबसाइट के साथ बना रहे हैं या आप कंप्लीट ब्लॉग बना रहे हैं। पॉइंट इधर ये है कि आपने गोल्स आइडेंटिफाई करने, ठीक है। मेन हमारी जो इसकी हेडिंग है आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट का हमें तभी पता लगेगा जब हम गोल्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला गोल क्या हो सकता था कि एफिलिएट के ज़रिए हमने पैसे कमाने हैं। दूसरा गोल क्या हो सकता था, हमने अपनी ही साइट को के ऊपर जो प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं उनके बारे में ब्लॉगिंग करनी है और उनको बेचने की कोशिश करनी है। तीसरा गोल क्या हो सकता था
कि हमने अपनी सर्च इंजन की रैंकिंग करनी है। तो अब ये तीनों गोल्स को जब हम जेन में रखेंगे तो उस हिसाब से हम अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे। और जब टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर मुझे पता लगेगा डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू पोस्ट रेगुलरली अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट बीइंग रेपिटेटिव। एक ब्लॉगिंग में रेपिटेशन जो एक या दो दफ़ा तो आप थोड़ा सा पिछला कंटेंट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी हर पोस्ट ही पिछली पोस्ट से मिलती जुलती होगी तो पीपल विल नॉट गोइंग टू फॉलो योर ब्लॉग, तो वो दे विल लूज़ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट लूज़ हुआ तो आपकी ऑडियंस लूज़ होगी। तो आपने सोचना है जब टारगेट ऑडियंस, मसलन मैंने जो लाहौर की बात की, लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग हो सकती है और बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोग कर भी रहे हैं। So you need to know who your target market is and what your goal is। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो बनता है कि how often you can blog। ठीक है, यानी कि पहला हो गया था हमारा कि क्या हम जो है इसके लिए डू यू हैव समथिंग टू से, कि क्या हमारे पास है टॉपिक या वो आइडिया जिसके ऊपर हम मुसलसल ब्लॉग करते हैं। फिर हमने आइडेंटिफाई की मार्केट और हमने आइडेंटिफाई किए ब्लॉग्स। अब तीसरी चीज़ है कि मैं एक बड़ा, मेरे पास आइडिया भी बड़ा ज़बरदस्त था और उस पर बहुत लिखा जा सकता था। मैंने टारगेट मार्केट भी और गोल्स भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं और मुझे क्रिस्टल क्लियर है कि मेरा ब्लॉग तो बड़ा स्मूथ और बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अब नेक्स्ट मैंने देखना है, इफ़ आई एम अ वेरी बिज़ी पर्सन और मैं वंस इन अ ब्लू मून राइटिंग करूँगा, या मैं कोई बंदा हायर नहीं करता और ख़ुद ही, या तो मैं बंदा हायर कर लूँ फिर उसको टॉपिक्स दूँ उससे लिखवाऊँ, तो मैं बंदा भी नहीं हायर कर रहा और मैं ख़ुद भी बड़ा बिज़ी हूँ और महीने में या हफ्ते में एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो हाउ ऑफन का मतलब है यू नीड टू ब्लॉग रेगुलरली। Depending on your goals, you may have to put blog posting up daily or perhaps weekly. You need to stay on top of your blog। जिस टॉपिक पे भी ब्लॉग रख रहे हैं, अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक की अगर आपके ब्लॉग पे आती रहेगी तो लोग फॉलो करेंगे। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही सेकेंड हैंड होगी कि वो 5-6 ब्लॉग्स पे ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी है, आपकी इतनी लेट आई कि लोग उस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इफ़ योर ब्लॉग रीडर्स ही अ ब्रेक इन योर पोस्टिंग दे मे लूज़ इंटरेस्ट। अगर आपकी आज एक ब्लॉग पोस्ट आई है फिर डेढ़ हफ्ते बाद आई है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अ गुड रूल ऑफ थम इज़ टू पोस्ट एट लीस्ट 3 to 4 times पर वीक। एनीथिंग लेस देन दैट वुड बी इनफेक्टिव फॉर मोस्ट पर्पजेज। तो 3 से 4 दफ़ा कम से कम, जो बहुत अच्छे ब्लॉग्स चल रहे हैं वो फुल टाइम ये काम करते हैं, और फुल टाइम का मतलब है वो डेली 1-2 पोस्टें डाल रहे हैं। तो मिनिमम भी आप थ्री भी जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, ठीक है। इससे नीचे तो बिल्कुल भी ब्लॉग ना करें तो बेहतर है। तो ये हम एक्चुअली हमारा टॉपिक क्या था, शुड वी ब्लॉग और शुड वी नॉट। आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चन एंड बी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक विद द आंसर एंड यू विल डिटरमिन वेदर it is time to blog or not to blog। Dear students, now we are going to discuss some mistakes which can be harmful for your blogs. Here we are going to discuss 3 top mistakes. Knowing the most common mistakes made by a blogger can help you avoid them. In the end, you have complete control over your blog. You can choose to do or not to do anything you want. Knowing the repercussions of certain actions or inactions can help you make better decisions. The top mistake number 1 is ignoring comments. Ignoring the comments posted on your blog is a big mistake. Some bloggers never read the comments posted on their blog. This is bad for 2 reasons. First, you will gain no insight about your followers. Your followers are essential if you want to have a popular blog or a blog that you earn money from. Think of your blog as a conversation, not as a monologue. Never ignore your reader. If you ignore them, they will eventually ignore you. Additionally, the comments section is where most spam will appear. Even if you install spam blocker, there will be a certain amount of spam that is able to make its way through.
Spam can hurt your blog's reputation and even cause problems on Google and the other search engines. Don't ignore the comments. The big mistake number two is infrequent posting. Infrequent or irregular posting on your blog can lead to you losing followers. Even if you do not think anyone is reading your blog, you want to set a schedule for blog posting and stick to it. It is important to have consistency on a blog, especially if it is a corporate blog or a blog intending to create revenue. Depending on the focus of your blog, you will need to determine the minimum frequency you can post on it. Some blogs can do quite fine with 3 or 4 blog posts per week, while other blogs need 10 or more postings per day. Your followers will start to expect to see postings regularly, so do not disappoint them. The big mistake number 3 is taking things personally. Do not fall into the trap of taking criticism personally. You can expect to see your share of negative posts, perhaps even flaming. Actually, flaming is when someone viciously attack another person online. Do not retaliate with a personal attack of your own. Simply delete the offending comment and move on. There are the three biggest mistakes bloggers make. The key to success with your blog is to review your popular blogs and see what they do, why they do well. Try to focus on the positive aspect of the blogging while keeping an eye out for common mistakes. I'm going to elaborate the mistake number 3 a little bit more. अगर आपको फॉर एग्जांपल the discussion, for example, you have a political blog, then obviously some readers will be in agreement with you and others are not. So जो एग्री नहीं कर रहा वो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख रहा है तो या वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो अगर तो वो क्रिटिसिज्म में कोई ऐसी फ्रेजेस यूज़ नहीं होती जो बिल्कुल ही ऑब्सीन हो, जो बिल्कुल ही पर्सनल अटैक हो, तो आपको इवन वो डिलीट भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्यों? ये कंटेंट जनरेट कर रहा है. डिसएग्रीमेंट विद इन लिमिट्स जो है वो क्या करता है, वो यानी कि वो रिसर्च की तरफ इंसान को ले जाता है. जिससे डिसएग्रीमेंट करते हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए और रिसर्च करता है और फिर कुछ कमेंट्स लिखता है, आप कुछ कमेंट्स लिखते हैं, तो ये सारे कमेंट्स क्या हैं, ये इवेंचुअली आपके ब्लॉग के लिए कंटेंट जनरेट हो रहा है. तो कभी भी डिसएग्रीमेंट को या अगर वो आपसे इवन वो थोड़ा सा नॉट इन पोलाइट वर्ड्स भी आए तो उसको भी नेगेटिवली ना लें, उसको भी आप बर्दाश्त करना सीखें और उसको रैशनल तरीके से अपनी डिस्कशन को इम्प्रूव करें, कंटिन्यू करें, तो वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट हो रहा है. So students, next is the importance of linking your blog and social media marketing accounts. Your blog and social media marketing accounts should be linked together. You want to create a network of resources that bring together your various marketing efforts. Linking your blog to your social media accounts is essential. For this, you need your blog posting on your Facebook and Twitter business pages. We are going to see how to create business page of Facebook and Twitter in our later lectures. For now, it is about blogging. So you can set up your social media account including Facebook and Twitter so that they automatically show a link to your blog postings. This automated technique makes it easy to update your Facebook pages and Twitter accounts with your new blog postings. One of the goals of the social media marketing plan is to keep content updated and fresh. If you update your blog frequently, you will be automatically updating your Facebook and Twitter accounts as well. Make sure the title of your blog posting are eye-catching
and you can drive traffic from social media site onto your blog. This should be the main objective on posting on social media. A short, catchy title will capture the attention of someone you are friend with on the Facebook or who is following you on the Twitter. Uh, Add social media links to blog. The first tip was that post your blog posting on your social media, and the next tip is add your social media links to your blog. People who find your blog may not know that you also have a social media account and pages. Make sure that your blog prominently display an invitation for them to become a fan on Facebook or a follower on Twitter. As a blogger, you want to give people ample opportunities to learn from you and about you. Linking your social media account to your blog creates these opportunities. Actually, Web 2.2 is all about users participation on websites and network. बेसिकली जो हमारा वेब था, वर्ल्ड वाइड वेब, वो जब क्रिएट हुआ तो वेब 2 जिसको हमने कहना शुरू किया, तो ओरिजिनल वेब से वेब 2 में फ़र्क ही ये था, जब आम जो बंदा है यानी कि एक यूज़र है, यूज़र की चीज़ों की इनपुट, मसलन फेसबुक वेब 2 का हिस्सा है. क्यों? You can upload your status, you can upload your pictures and the other people can see. तो जब हमने लोगों को इन्वॉल्व किया, that was the web 2. तो तब से हमारे पास web 2 है और ब्लॉगिंग भी web 2 का हिस्सा है, and it's all about getting comments and interacting with people, not the one way communication. A blogger needs to think about inviting participation on their blogs and beyond their blog in order to create an overall user experience that builds loyalty. Loyalty means कि लोग आपकी बातों के ऊपर यानी कि वो कहे अच्छा अगर ये अली रेहान का ब्लॉग है और ये इन्फॉर्मेशन उसमें आई थी तो इट इज़ बिलीवेबल इन्फॉर्मेशन. अगर आप किसी ब्रांड के बारे में कोई रिव्यू देते हैं तो लोग आंखें बंद करके यकीन करें, ये लॉयल्टी होती है और ये ओवरनाइट नहीं आती. जब आपके ओरिजिनल ब्लॉग्स पोस्ट जो है लोगों को उससे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है और आपको फॉलोअर्स बनते हैं, आपके फैंस बनते हैं और उनको लूज़ नहीं करना चाहिए. हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए और वो प्लेटफॉर्म ट्विटर है, फेसबुक है, तो वो सिर्फ ब्लॉग्स के ऊपर ना विजिटर बने, वो आपको फॉलो करें तो आपकी नई या पोस्टिंग आए उसका ट्वीट भी जाए तो उनको पता लग जाए, तो इवेंचुअली दे विल लैंड ऑन योर ब्लॉग्स. आगे है जी ऑफ ब्लॉग फीड्स. व्हेन यू सेट अप योर ब्लॉग्स you will have the option to arrange a blog feed that other people can pick up and add to their site. ब्लॉग फीड का मतलब ये है कि मैं अगर अलाउ करूँ, उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं, तो मेरा लिखा हुआ ब्लॉग आप अपनी साइट में भी शेयर कर सकते हैं. तो ये बेसिकली योर ब्लॉग पोस्टिंग विल बी डिस्प्लेड ऑन एनी साइट दैट एड्स द फीड टू इट. तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो जिनका काम ही ये होता है कि उनका अपना कंटेंट नहीं होता कोई, वो इंटरेस्टिंग कंटेंट दूसरों का जो किसी ने अलाउ किया होता है एज अ ब्लॉग फीड, वो वहाँ से उसके लिंक उठा के उधर डालते हैं. तो इवेंचुअली तो आपका ब्लॉग ही पढ़ा जा रहा है, तो वहाँ से लोग आपके ब्लॉग पे ट्रांसफ़र होते हैं. अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके फॉलोअर भी बनते हैं. A blog feed can open up new traffic source and revenue stream with no additional effort on your part. आपका अगर कंटेंट अच्छा है और दूसरे लोग उसको अपनी साइट्स पे शेयर कर रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए. You should also add your blog feed to directories and other resources that people search in order to add fresh content to their sites. Remember, fresh content is a key to success. Your blog can become a source for content for other websites, which means your blog and website wins. Link your blog to your social media account and blog feeds resources for maximum impact. मसलन मुख्तलिफ डिस्कशन फोरम्स होते हैं, उसके अंदर आप अपने लिंक्स दे सकते हैं कि वहाँ पे कोई किसी ने कोई क्वेश्चन किया हुआ है और वो क्वेश्चन आपके ब्लॉग में कहीं आंसर हुआ हुआ है, तो उस
थ्रेड के अंदर बजाय उस क्वेश्चन का आंसर करने के आप अपने ब्लॉग का एड्रेस भी दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें और डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं जिसके अंदर हम अपने ब्लॉग पोस्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कमेंट्स और कमेंट्स को मॉडरेट करना, मॉडरेटिंग द कमेंट्स। Comments by readers of your blog can be moderated by you in a number of ways. Basically दो तीन तरीके हैं which we are going to discuss here. Your decision on how you will monitor comments will have a large impact on your overall blog. It is important that you keep in mind the pros and cons of your decision. First and foremost, blogs that invites comment from the readers are generally more popular than blogs that do not. तो जिन्होंने अपने कमेंट्स डिसेबल किए होते हैं उनके मुकाबले में जो ब्लॉग्स कमेंट्स अलाउ करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपको एक रीज़न तो बताई कि कमेंट्स जो हैं वो अगेन कंटेंट है, सर्च इंजन में वो वर्ड्स एज अ कीवर्ड्स नज़र आएंगे लोगों का दिया हुआ, तो जितनी कमेंटिंग ज़्यादा होगी तो उतनी आपकी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होगी। आप अक्सर यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे डू इट योरसेल्फ पे या कोई इस तरह की, तो उसमें लिखा होता है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो रीज़न यही है कि जितने कमेंट्स होंगे उनकी वीडियो की इंपॉर्टेंस उतनी ऊपर जाएगी, सर्च में ऊपर आएगी। तो इवेंचुअली वो जितनी ऊपर आएगी उतने लोग देखेंगे और उनको मोनेटाइज करने में यानी कि उसे पैसे कमाने में आसानी होगी। अगेन वेब 2.0 इज़ ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन ऑन द वेब and people like to feel part of a blog community rather than just a reader of a one-sided blog. For some businesses, it may make sense to disallow comments. However, for the majority of businesses and personal blogs, you should consider allowing comments from your readers. अब comments जब moderate करने की बात होगी तो there are three types of comments. First of all, unrestricted commentary. One option you can have on your blog is unrestricted commentary. This allows anyone to post comments on your blog with no moderation. Although this is the most open form of blogging, it is also the most dangerous one. You will undoubtedly find inappropriate comments and spam in your blog which can lead to problems with the search engines. लोग abusive language यूज़ कर सकते हैं। स्पैमिंग जो है यानी कि पोस्ट किसी और टॉपिक पे थी, नीचे वो किसी और प्रोडक्ट की और उसको सेल करने के लिंक्स आ रहे हैं और ये वो, जब इस तरह के ब्लॉग्स आते हैं तो सर्च इंजन की वैल्यू भी उसकी कम होती है। वो गूगल उसको एज अ स्पैमर लेता है उस वेबसाइट को, जिस वेबसाइट्स पे कमेंट्स भी इसी तरह के होते हैं। गूगल समझता है कि ये ऑन पर्पज़ आपने अलाउ किया हुआ है और उधर वो बजाय इसके कि कोई लॉजिकल डिस्कशन हो रही है उधर ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट हो रही है। फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड कमेंट्री। कोई केस हो सकता है जिसमें ये हो, लेकिन 99% आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट इट शुड बी अलाउड। इससे थोड़ा सा बेहतर क्या हो सकता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन मॉडरेटिंग द कमेंट्स पर्सनली, तो दूसरा तरीका यह है ओनली रजिस्टर्ड यूज़र कैन कमेंट। One small but effective way to restrict the commentary on your site is to require the person interested in commenting to register for your blog with a valid email address. और जब वो email address आए उस पर वेरिफिकेशन कोड जाए और वो वेरीफाई करे तो फिर वो रजिस्टर्ड यूज़र बने। This will prevent most spammers who want to post quickly and move on. तो ज़्यादातर लोग जो स्पैमर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी कुछ अपना लिंक डालना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट पीपल फ्रॉम पोस्टिंग अनरीजनेबल कमेंट्स ऑन योर पोस्ट, अब्यूसिव लैंग्वेज और ये वो, क्योंकि उनको पता है कि हम रजिस्टर्ड हुए हैं और अगर हमें अनरजिस्टर कर दिया गया या बैन कर दिया गया तो हमें दोबारा से रजिस्टर होना पड़ेगा। तो जो स्पैमर्स और जो जस्ट फॉर यानी कि इधर उधर की बातें करने के लिए लोग हैं वो इतना टाइम नहीं लगाते कि वो अगेन एंड अगेन रजिस्टर हो। और जो जेन्युइन रजिस्टर हुआ होगा
उसको अगर कोई आपसे इख्तलाफ भी है या आपके किसी और कमेंट करने वाले से इख्तलाफ है भी, तो वो इस डर से कि मेरी इस ब्लॉग पे रजिस्ट्रेशन बैन ना हो जाए, वो अब्यूसिव लैंग्वेज एटलीस्ट यूज़ नहीं करेगा। और इवन देन सम स्पैम एंड अनरीजनेबल कमेंट्री विल स्टिल गेट थ्रू, यानी कि सारी ये रजिस्ट्रेशन के बावजूद कुछ लोग फिर भी होंगे, कुछ स्पैम फिर भी आएगी। लेकिन होगा क्या, वंस समवन इज़ रजिस्टर यू कैन मॉनिटर देयर पोस्टिंग ऑन द ब्लॉग एंड बैन देम और ब्लॉक देम इफ़ यू फाइंड देम पोस्टिंग इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स। तो हम अगर यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम कमेंट्स को प्रूव करने पे नहीं भी लगाते, लेकिन गो थ्रू करते हैं और वहाँ पे हम इवेंचुअली एक बटन भी दे सकते हैं रिपोर्ट द कमेंट, कि अगर कोई किसी ने अब्यूसिव किया या कोई, तो दूसरे लोग रिपोर्ट, जिसकी हमें 3 4 5 रिपोर्ट्स आ जाएं, तो फिर हम उनको खुद जाके देख के, और फिर हमारे पास राइट्स होते हैं कि हम उनको बैन कर दें। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा बेसिकली कहना चाहिए फूल प्रूफ है, लेकिन ऑब्वियसली जितनी चीज़ फूल प्रूफ होगी उतना ही आपको उसके अंदर एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी है, वो है अप्रूव्ड कमेंट्स ओनली। अप्रूव्ड कमेंट्स का क्या है, मोस्ट ब्लॉगर्स चूज द ऑप्शन ऑफ अलाउइंग ओनली अप्रूव्ड कमेंट्स टू अपीयर ऑन देयर ब्लॉग्स। Basically, you set up a blog so you are notified anytime someone posts a comment to one of your posting. The comment will not appear until you have reviewed it and approved it. जब तक आप उसको, आप जैसे किसी ने कमेंट किया, वो कमेंट नेट पे नहीं जाएगा, आपके ब्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं आएगा। वो आपको एक ईमेल आ जाएगी कि किसी यूज़र ने कमेंट किया है, आप जाके देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे, अगर आप उसको अप्रोप्रिएट समझेंगे, आप अलाउ कर देंगे, तो कमेंट उधर नज़र आने लग पड़ेगा। ऑब्वियसली इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर तो देखें, दोनों सूरतों में बेसिकली ये पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तब भी ये पॉसिबल है, और बहुत कम कमेंट्स आते हैं तब तो है ही पॉसिबल। किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, अगर तो आपका ब्लॉग नया है और अभी चंद कमेंट आते हैं, तो चंद कमेंट्स को मॉडरेट करना मैनुअली कोई बात नहीं है। आप दिन में कोई 1 घंटा अपने या आधा घंटा अपने इस काम के लिए रख लें, और चंद कमेंट्स आते हैं उनको एक दो आप पढ़ें और अप्रूव कर दें। जिसको नहीं अप्रूव करना उसको ना करें, ठीक है। तो जब वो कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो आप कह सकते हैं कि अब तो इट इज़ टेकिंग माई टाइम अलॉट। तो इट मेंट दैट योर ब्लॉग इज़ ग्रोइंग अलॉट। अगर कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो जो भी आपका गोल था, पर्पस था, अगर वो मोनेटाइजिंग था, पैसे था, तो वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो अगर वो ग्रो कर रहा है तो यू कैन स्पेंड टाइम ऑन इट। देखें, उस चीज़ पे टाइम स्पेंड करते हुए वरी होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर से आपको कोई बेनिफिट ही ना हो। तो अगर कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर ग्रोइंग मैन, तो उसके ऊपर यू शुड बी स्पेंडिंग योर टाइम। और इवन इफ़ इट गोज़ बिग, और बहुत बड़ी आपकी वो सक्सेस हो जाती है, तो यू शुड हैव अ टीम, ठीक है, जो वो उसको मॉडरेट करे। लेकिन एट लीस्ट सिंगल ब्लॉग को अगर वो बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, और उस पर से ऑब्वियसली फिर मोनेटाइजिंग भी शुरू हो जाएगी, तो आप उसको टाइम दे सकते हैं। तो दोनों सूरतों में ये पॉसिबल है। हाँ, उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी ब्लॉगिंग शुरू की है और वो समहाउ वो दे आर मैनेजिंग 3 और 4 पोस्ट बेयरली फ्रॉम देयर डेली रूटीन एक्टिविटीज़, और वो फिर क्या करें, वो फिर सेकंड ऑप्शन यूज़ कर दें कि सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र जो हैं कमेंट करें, और थोड़ा सा हफ्ते में 1 दिन लगा के स्पैम्स और इन चीज़ों को चेक करके रिमूव कर लिया करें। तो जी नेक्स्ट है मोनेटाइजिंग योर ब्लॉग। मोनेटाइजिंग का मतलब है कि ब्लॉग से अर्न किस तरह करना। सम पीपल ब्लॉग फॉर द प्योर प्लेयर ऑफ ब्लॉगिंग अबाउट समथिंग दे आर पैशनेट अबाउट, जो उनका कोई पैशन होता है अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। हो सकता है कुछ ऐसे लोग दुनिया में हों जिनको यानी कि जो दे आर ऑलरेडी वेरी रिच, और उनको पैसों में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितने पैसे ब्लॉगिंग से ले सकते हैं, तो लेकिन उनकी कोई स्किल सेट है, कोई नॉलेज है जो दुनिया से शेयर करना चाहते हैं, और अगर उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं तो और वो एक बड़ा नाम कमा सकें, तो वो भी उनकी एक सक्सेस है। तो ज़रूरी नहीं हर बंदा ब्लॉगिंग करे पैसे के लिए।
लेकिन ज़्यादातर लोगों का होता है कि अगर वो एफर्ट कर रहे हैं तो कोई अर्निंग भी हो तो इट इज़ गुड फॉर देम. There are number of ways you can monetize your blog. You can choose one or more of them depending on which is the most appropriate for you, your blog and your blog followers. The first one is making money with affiliate arrangements. इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम भी कहते हैं, डिफरेंट इसके नाम है. अमेज़ॉन भी ये आपके साथ अरेंजमेंट करता है और भी कुछ और यानी कि काफ़ी नेट पे हैं जो बड़े नाम हैं उनकी ऑब्वियसली थोड़ी सी कमीशन कम होगी, जो छोटा नाम है उसकी कमीशन ज़्यादा होगी. बड़े नाम की कमीशन कम हो के भी अर्निंग ज़्यादा इसलिए हो सकती है कि उस पर जो एंड यूज़र है उसको इत्मीनान ज़्यादा होगा तो बाइंग के चांसेस ज़्यादा है. एक अननोन वेबसाइट के साथ आपकी एफिलिएट प्रोग्रामिंग है तो उधर बाइंग के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन कमीशन वो फिर आपको ज़्यादा दे रहे होते हैं. तो ये आपका डिपेंड है कि आप किन के साथ एफिलिएट अरेंजमेंट करते हैं. ऑब्वियसली देयर आर टर्म्स एंड कंडीशन. मसलन अमेज़ॉन के साथ उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी और वो उस पर बड़े यानी कि उससे वो हटेंगे नहीं. और समटाइम्स लोगों के अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, उसमें पैसे भी पड़े होते हैं और वो भी सारे उनके ख़त्म हो जाते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप फॉलो ना करें. खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम किसी वक्त फिर डिस्कशन करेंगे. Depending on the topics of your blog, you may be able to make money through affiliate relationship. If your blog is on topic that relates directly to the product, you can almost assuredly make money by placing affiliate ads on your site. Okay, for example, if someone is reading a blog about हाउ टू रिचार्ज योर बैटरी, डेड बैटरी, यूपीएस है आपके पास, उसकी बैटरी तकरीबन ख़त्म हो गई है और आपको कोई टिप एंड ट्रिक आती है कि वो 1 मंथ या 15 डेज़ के लिए दोबारा वो हो सकती है यूजेबल, और आपने उस पर ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है. तो बेस्ट ऐड क्या होना चाहिए इस जगह पे? बैटरी का. अगर कोई जिस एरिया का यूज़र वो पोस्ट पढ़ रहा है उस एरिया में अमेज़ॉन, मसला अमेरिका का बंदा कोई पोस्ट पढ़ रहा था और अमेज़ॉन से बैटरी उसको सेंड की जा सकती थी, तो वहाँ पे ऐड बैटरी का आ रहा हो, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं उसका उस ऐड को क्लिक करने का, क्योंकि ही इज़ इंटरेस्टेड इन अ बैटरी. और अगर उस जगह पे वो बैटरी के बारे में पढ़ रहा था आपका ब्लॉग के हाउ टू रिजरेक्ट योर डेड बैटरी, ब्लॉग ये था, और वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट आए कि ट्रैवल टू पाकिस्तान और टूरिज़म की या किसी और की, तो चांसेस बड़े रेयर हैं कि इस वक्त उसका इंटरेस्ट उसमें हो. तो बेसिकली हमने ऐड को इसलिए नहीं दिखाना कि वो ऐड वहाँ पे नज़र आए, नहीं, ऐड हमने इसलिए दिखाना है कि जिस चीज़ में ही इज़ इंटरेस्टेड राइट नाउ वो ऐड उसको नज़र आएगा, तो देयर आर चांसेस ही इज़ गोइंग टू क्लिक and then there are some chances that he is going to buy that product. और जब वो एफिलिएट मार्केट का असूल ये है कि जब वो आपकी साइट से उधर जाएगा और फिर बाय करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा. जो गूगल एडसेंस है उस पर क्लिक करने पे है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग और एफिलिएट प्रोग्रामिंग पे बाय करने पे है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ ब्लॉग अबाउट एक्सेसरीज, यू कैन साइन अप फॉर एफिलिएट प्रोग्राम्स from a retailer of accessories. You can place affiliate ad on your blog as well as add affiliate links in your actual blog posting. क्या मतलब? एक तो वैसे ऐड आ रहा है साइड पे, और एक्चुअल ब्लॉग पोस्टिंग में आप किस तरह लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आई हैव अ ब्लॉग अबाउट डू इट योर सेल्फ, और मैं उसमें टेबल बनानी सिखा रहा हूँ कि हाउ टू मेक अ टेबल आउट ऑफ सम प्लाईवुड एंड दिस एंड दैट. तो उसके अंदर मैंने बताया जी स्क्रू ड्राइवर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला है, और वो उस स्क्रू ड्राइवर की डिस्क्रिप्शन को ब्लू कलर का लिंक बना दिया, और जब कोई उसको क्लिक करे तो अमेज़ॉन के उस पेज पे चला जाए, वहाँ पे लिखा है जी ये स्क्रू ड्राइवर जो है ये $30 का है.
और मैं लिखूं कि साथ में थोड़ी सी उसकी तारीफ भी कर लूं कि मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसकी एक्चुअल कोई प्रॉपर्टीज़ जो हों, जो उसके पॉजिटिव्स हों, उनको साथ लिख दूं कि इसकी वजह से मैं मैनुअली अगर स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करता तो मुझे जो टाइम लगना था इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की वजह से मेरा ये टाइम स्लैश हो गया 10 टाइम्स लेस टाइम में मैंने वो चीज़ क्रिएट की। तो मैंने एक तो ऐड साइड में नज़र आ रहा था ना एफिलिएट का, और एक मैंने ऐड बीच में ये डाल दिया, और फिर आगे मैंने कोई और डिवाइस यूज़ की तो उसका भी अक्सर आप पोस्ट पढ़ें तो उसमें ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि वो जिनके साथ उनकी एफिलिएट रिलेशनशिप या एफिलिएट प्रोग्राम होता है वो जो डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं उस डिवाइस का उस साइड पे अमेज़ॉन का वो अगर अमेज़ॉन के साथ है तो वो अमेज़ॉन का लिंक भी देते जाते हैं उस डिवाइस का। तो ये ओरिजिनल पोस्ट में है। द एफिलिएट रिलेशनशिप में इवन ड्राइव सम ऑफ योर कंटेंट। अगेन आपको अपने, मैंने कहा कि उस डिवाइस की कुछ प्रॉपर्टीज़ डाल दी आपकी, तो क्या हुआ, रिलेशनशिप में इवन ड्रिवन ड्यू टू दैट कंटेंट। If you can earn money by mentioning a new product or service on your blog and provide a link to a retailer offering the product, you can earn a percentage of the sale. You can also contact retailers directly and request that they offer your readers a coupon code. The coupon code could give the readers a discount and earn you a commission for every sale. This way both you and your readers benefit from the affiliate arrangement. For example, there are sites, there are blogs जो आपको वेब होस्टिंग के बारे में ब्लॉग्स देते हैं, और उनकी हर एक के अंदर एक ब्लॉग बड़ा कॉमन है, टॉप 10 वेब होस्ट्स, टॉप 7 वेब होस्ट, टॉप 5 वेब होस्ट, इस तरह का वेब पे आपको उन साइट्स पे इस तरह का कोई ना कोई ब्लॉग पोस्ट ज़रूर मिलेगी। और उसमें वो जो टॉप 5 या टॉप 7 या टॉप 10 उन्होंने शेयर्ड होस्टिंग्स के उन्होंने वो की होती है एक रिव्यू, उस रिव्यू में उन्होंने नीचे एंड पे लिखा होता है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए जाएंगे और ये होस्टिंग बाय करेंगे और वहाँ पे जाके आप ये कोड डालेंगे तो आपको 20% ऑफ में मिलेगी होस्टिंग। तो एक्चुअली वो कोई आउट ऑफ ब्लू मून उनको वो कोड नहीं मिल गया, ये उन्होंने अरेंजमेंट किया है, उसमें उनको भी प्रॉफिट मिलेगा, 20% आपको भी ऑफ मिल रही है। अब होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हर साल रिन्यू होनी है, तो जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो क्या करता है, वो कहता है चले फर्स्ट ईयर में मैंने 20% ऑफ दे दी कस्टमर को, और कोई 10% या 20% ही मैंने उस बंदे को पे कर दिया जिसके ब्लॉग से वो आया है। तो नेक्स्ट ईयर से तो वो नहीं ना करेगा, नेक्स्ट ईयर से तो सारे उसी को मिलेंगे। तो वो फर्स्ट ईयर के अपने प्रॉफिट्स में कट लगाता है, और समटाइम्स वो अपने पास से यानी कि जितने की उसको चीज़ पड़ी होती है उसमें से उसको छूट रहा होता है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से उसको वो प्रॉफिट में ले जाता है। तो हम कूपन कोड्स भी ले सकते हैं और अपने रीडर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी। दूसरा मोनेटाइजिंग का सबसे एक पॉपुलर तरीका है PPC एड्स, जो कि आप ब्लॉग्स पे लगा सकते हैं। पे पर क्लिक, PPC स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। इस पे ऐड देखने पे कोई आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपके ब्लॉग पे गूगल या याहू या बिंग की तरफ से ऐड आया हुआ है तो उसको जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लिक पे पैसे मिलते हैं, इस पे चीज़ बाय करने पे नहीं मिलते। लेकिन वो पैसे ऑब्वियसली बाय करने पे जो कमीशन होता है वो डॉलर्स में होता है। डॉलर्स का मतलब है कम से कम भी जो अगर $30 की प्रोडक्ट है और आपको कोई 5% 4% दे रहे हैं तो वो आप देख लें कितना बन रहा है। लेकिन इसके पे पर क्लिक में सेंट्स में होता है यूजुअली, नॉट इवन अ सिंगल डॉलर, क्योंकि वो हज़ारों क्लिक्स हों तो वो ऑब्वियसली किसी ने तो पे करने हैं। आप इस जगह पे आगे सोचें कि अगर आपकी वेबसाइट हो या आपकी प्रोडक्ट हो और आपने अपना ऐड दिखाना हो तो आप एक बंदा अगर उस पर क्लिक करे तो आप $1 तो नहीं पे करेंगे, फिर तो आप ऐड ही नहीं चला सकेंगे। अगर गूगल आपको ये कहे कि जी 500 क्लिक्स पे मैं आपसे $1 लूँगा तो आप कहेंगे अच्छा ये इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ समथिंग, तो आप एज अ कंपनी 500 क्लिक्स के लिए $1 देने को तैयार हो जाएंगे।
अब गूगल ने उसमें से अपना भी रखना है, फिर उस साइट को पे करना है जिससे वो क्लिक्स आ रहे हैं। तो पे पर क्लिक का पर क्लिक बहुत माइनर है, लेकिन इफ़ योर ब्लॉग इज़ बिग, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ रीडर टू योर ब्लॉग्स डेली और वीकली, तो वो फिर इवेंचुअली वो चीज़, क्योंकि पूरी दुनिया है, मार्केट है, अगर आपका ब्लॉग थोड़ा पॉपुलर होता है और उस पर हंड्रेड्स में इवेंचुअली पोस्ट बन जाएंगी। पहले दिन तो नहीं 100 आएंगी, अगर आप वीकली 3 या 4 पोस्ट भी करते हैं तो आपके 10 वीक्स के अंदर 40 पोस्ट तो हो गई। तो इसी तरह अगर हम कोई 30 वीक्स में जाएं तो वो हंड्रेड्स में चलेगी। अब वो सारे पोस्ट्स जो हैं वो आपका कंटेंट बनता जा रहा है और उतने ही लोग आपके विजिटर्स, इसका मतलब है इंक्रीज़ होते जाएंगे। कोई किसी पोस्ट को सर्च कर रहा होगा, कोई किसी चीज़ को सर्च कर रहा होगा, वो आपकी पोस्ट है, तो इवेंचुअली आपके पे पर क्लिक्स भी बहुत अच्छी अमाउंट्स जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो यू कैन ऐड गूगल, याहू एंड बिंग एड्स टू योर ब्लॉग एज वेल। You will earn some money every time someone clicks on the link from your blog. If you are going to do this, it is important that you use ad filter so you can make sure that the ads that appear on your blog are appropriate for your target market. ठीक है, उसमें एड फिल्टर्स आते हैं, वो हम डिटेल में जब जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब हम गूगल एडसेंस के ऊपर लेक्चर करेंगे तो वो तब हम डिस्कस करेंगे। You do not want ads for the sake of having ads. You want ads which are relevant to your target market. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वही जो बैटरी वाली एग्जांपल के साथ, कि अगर कोई बैटरी के मतलब ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहा है और उसको ऐड नज़र आ रहा है किसी और चीज़ का जो कि बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो चांसेस कम है कि कोई उस पर क्लिक करे। ठीक है, और गूगल आपको अलाउ नहीं करता आप धोखे से क्लिक कराएं, गूगल आपका अकाउंट बैन कर देगा। कई साइट्स पे आप जाते हैं जिधर आप समझते हैं कि इधर कोई आपको फाइल डाउनलोड मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली वो ऐड होता है। वो एड्स गूगल के एड्स नहीं हैं, वो कोई बहुत लो कैटेगरी की एडवर्टीज़मेंट कंपनीज़ के ऐड हैं जो बहुत ही कम पे करते हैं। गूगल जो है वो आपका एडसेंस का अकाउंट बैन कर देता है अगर आप लोगों को धोखे से क्लिक करवाएं ऐड। रीज़न बीइंग वही बात है, आप ऐड ख़रीदने वाले बन के सोचें कि आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं वो लोग एड्स पे आएँ जो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, ना कि आपका ऐड धोखे से लोगों को दिखाया जाए और आपसे पैसे ले लिए जाए। तो गूगल दोनों साइड्स को मेक श्योर करता है, जिसने ऐड अपने दिए हैं उनको भी उसने फैसिलिटेट करना है, धोखे से उनके एड्स क्लिक नहीं कराने, रियल ट्रैफिक उनके एड्स पे आनी है जो वाकई उनकी उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। तो हर ये रैंडमली एड्स आते हैं जो गूगल एडसेंस के ज़रिए आते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लाते, लेकिन आप उसके अंदर कैटेगरीज अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाई ट्रैफिक ब्लॉग कैन मेक कंसिडरेबल मनी थ्रू पे पर क्लिक एड्स, दो परहैप्स नॉट एज मच एज इफ डन थ्रू राइट एफिलिएट रिलेशनशिप। The bottom line is you can monetize your site with affiliate relationship and PPC ads. If you are taking the time to write compelling content, you should reap the reward of your efforts. Go ahead and monetize your blog in one or both ways. और एक और वे है वो आपका लोकल मार्केट का वे है। अगर आप किसी ऐसी नीच में काम करते हैं जो आपकी लोकल मार्केट से बिलोंग करता है और आपकी वेबसाइट बड़ी कामयाब हो जाती है, तो फिर आप अपने लोकल बिजनेसेस से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके लोकल बिजनेसेस भी आपको जानते हैं कि वाकई ये इस डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाला ब्लॉग है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इज़ parkwheels.com। तो अगर पार्कव्हील्स का कोई नुमाइंदा किसी जेल रोड पे जाता है, विज़िट करता है, और उधर के लोगों को जो जेल रोड की मार्केट है उनको वो कोई ऑफ़र करता है कि वो अपने शोरूम्स के ऐड और अपनी गाड़ियों के एड्स उनको डायरेक्ट दे दें, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग देने पे तैयार हो जाएंगे अगर उनको वो वारा खाते हों, वो इतने ज़्यादा महंगे ना हो। तो ये हमारे पास अगर हमारा ब्लॉग बहुत पॉपुलर हो जाए या साइट बहुत पॉपुलर हो जाए तो हम डायरेक्ट लोकल मार्केट से भी मोनेटाइजिंग यानी कि एड्स ले सकते हैं, और उससे मंथली बेसिस पे वीकली के एक वीक आपका ऐड मेरी साइट पे नज़र आता रहेगा, उसके इतने या मंथ का या ईयर का, इट्स अप टू यू जो भी आप। ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी ब्लॉगिंग फॉर अ टारगेट मार्केट। Blogging is an effective way to earn income while writing about something you are passionate about. It is sometimes too easy to let your blog run astray, so make sure you always have your target market in mind. Sometimes basically आप पैशन ब्लॉग शुरू किस तरह होता है कि यू हैव सम नॉलेज अबाउट अ फील्ड और आप बड़े पैशनेट है उस फील्ड के बारे में, और अपने पैशन के अंदर आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और ऐसी पोस्ट लिखते हैं जो शायद आपका पैशन तो पूरा कर रही हैं, लेकिन वो टारगेट मार्केट शायद उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जिन लोगों के लिए आप लिख रहे थे शायद वो उनके ऊपर की बातें आपने लिखनी शुरू कर दी, आप उस डोमेन के एक्सपर्ट थे, आपने ऐसे ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए जो उनको समझ नहीं आ रहे, टारगेट मार्केट से ऊपर। और बड़ी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो इसलिए टारगेट मार्केट को कभी नहीं भूलना। द मोस्ट इफेक्टिव ब्लॉग स्टे ट्रू देयर मेन फोकस एंड प्राइमरी टारगेट मार्केट। Your ability to keep your blogs focus on your target market will be result in greater loyalty from your readers as well as greater opportunities to earn money on or through your blog। या तो आप ब्लॉग पे से ही पैसे कमाएंगे या ब्लॉग के ज़रिए कोई चीज़ मसलन सेल करके आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप टारगेट मार्केट का हिसाब रखें। You should try to get as specific as you can when determine who your target market is. For example, the criteria you may consider when determining your target market may include age, children or no children, ethnic backgrounds, gender, geographic area, income background, marital status, religious background। तो ये सारी चीज़ें आप ज़हन में रख के अगर आपने इन चीज़ों में से कोई चीज़ें अगर कंसर्न्ड हैं तो ऑब्वियसली हर किस्म के ब्लॉग में हर किस्म की चीज़ नहीं कंसिडर होगी, लेकिन जो इसमें से हो सकती हैं वो आपने ज़हन में रखनी है। दे आर जस्ट सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स यू कैन कंसिडर व्हेन आइडेंटिफाइंग योर टारगेट मार्केट। तो ये जो मैंने लिस्ट बताई है दे आर फ्यू ऑफ देम जो आपने ओरिजिनल मार्केट का आपने करना है। आइडेंटिफाई इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेट मार्केट। Once you have identified your target market and described them, you need to start to determine what interests them and what does not। तो जब आपको एक दफ़ा टारगेट मार्केट आपने डिटरमिन कर ली है तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने उसके बारे में एक रिसर्च करनी है कि उनको क्या चीज़ इंटरेस्ट करती है और क्या चीज़ इंटरेस्ट नहीं करती। You can use social media sites like Facebook to gain some insight into your target market। आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, उस तरह के पेजेस ज्वाइन कर सकते हैं जिन पेजेस को उस टारगेट मार्केट ने ज्वाइन किया हुआ है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने जिस मार्केट को टारगेट किया, जो आपके गोल्स हैं इवेंचुअली वो वाली मार्केट किस तरह की इन चीज़ों पे कमेंट कर रही है ऑलरेडी और वो किस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फूड पे ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं और आपने टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई किया है यूथ ऑफ लाहौर यानी कि या यूथ ऑफ पाकिस्तान के यंगस्टर्स आजकल जो फूड में इंटरेस्टेड हैं, तो अब आपने ये टारगेट मार्केट रखी है और आपने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है और आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर फूड आइटम्स पे ब्लॉग लिख रहे हैं, तो मे भी कुछ पोस्टें आपकी बड़ी हिट हों और कुछ पोस्टें आपकी बड़ी फ्लॉप हों उस टारगेट मार्केट के अगेंस्ट। रीज़न बीइंग हो सकता है कि आपने अपने दिमाग से कुछ डिशेस सेलेक्ट की हैं, उनमें से कुछ डिशेस में वो इंटरेस्टेड है और कुछ में नहीं है। तो द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आप फेसबुक के फूड पेजेस पे जाएं, रेस्टोरेंट्स की जिधर पोस्ट शेयर हुई होती हैं, जिधर रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ हुए होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करें कि यूथ जो है वो ज़्यादातर आजकल फास्ट फूड में है, चाइनीज़ में इंटरेस्टेड है, कढ़ाई और बारबेक्यू में इंटरेस्टेड है, तो ज़रा आपको आइडेंटिफाई कर सकें। रिमेंबर योर टारगेट मार्केट विल हैव डाइवर्स इंटरेस्ट, सो यू वांट टू ट्राई आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड सिमिलैरिटी। डाइवर्स मिलेंगे लेकिन आपको कुछ ना कुछ देखना है कि किस में ज़्यादा है और कहाँ किस साइड पे ज़्यादा है। Try to stay as close to your blog's primary purpose as possible. Identify their interests will enable you to make appropriate reference in your blogs rather than add entirely new subjects
that have little relevance to your primary subject. तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है. Then invite feedback from your target market. You can invite feedback about your blog from your target market on your blog or on your social media sites. Input from your target market is a great way to make sure you are on point and will help you make sure your blog is serving your target market well. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. आप लोगों को किसी तरह मोटिवेट करें कि वो आपको फीडबैक दें. उसके लिए समटाइम्स हमें कोई कोई इंसेंटिव देना पड़ सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप छोटा सा कोई क्विज़ रख दें, सर्वे फॉर्म रख दें, जिसके अंदर आप उस तरह के क्वेश्चंस बनाएं जो आपको टारगेट मार्केट की इनपुट आ जाए, और आप कहें कि ये सर्वे फिल करने वाले 10 लोगों को मैं किसी रेस्टोरेंट का फ्री पास दूंगा, उधर वो इतने तक का मील खा सकेंगे. दूसरी तरफ आप रेस्टोरेंट वालों से भी कोई डील कर सकते हैं कि आपका नाम, आपकी इन्वायरमेंट, आपके सारी चीज़ को मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइज़ करूंगा, पब्लिश करूंगा. उसके अगेंस्ट आपने मुझे 10 फ्री कूपन्स देने हैं जो 500 तक के हों या जो भी अमाउंट करें. तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं अपने उसके ऊपर. ब्लॉग्स शुड व्यूड एज कन्वर्सेशनल नॉट मोनोलॉग्स. तो टारगेट मार्केट के साथ आपकी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, मोनोलॉग्स नहीं होने चाहिए. योर रीडर्स विल फील मोर लॉयल्टी इफ़ दे कैन कंट्रीब्यूट टू योर ब्लॉग एंड स्टार्ट डायलॉग्स विद यू एंड अदर फॉलोअर्स ऑफ योर ब्लॉग. Do not get in a habit of thinking you are the only one that should offer commentary on your blog or you will have very few followers. ये ना समझे कि जी आपका ब्लॉग है तो आपके अलावा किसी को राइट नहीं होना चाहिए इधर अपनी या आपकी इजाज़त के बगैर किसी को राइट नहीं होना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का. अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू बेशक आपसे 360 डिग्री ऑपोजिट 180 डिग्री ऑपोजिट हो, अगर वो विद इन लैंग्वेज लिमिटेशंस है, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं हुए जो किसी को हर्ट कर रहे हैं, कोई स्लैंग नहीं, कोई बुरी लैंग्वेज नहीं यूज़ हुई हुई, बैशिंग नहीं की गई किसी चीज़ की, तो अगर वो आपसे इख्तिलाफ भी रखता है तो उसका राइट है कि उसका कमेंट पब्लिश हो. आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट, फोकस ऑन देयर नीड्स एंड वेलकम देम एज अ पार्ट ऑफ योर ब्लॉग and you can be well on your way to successful blogging. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. बाकी इसका पार्ट 2 है टिप्स एंड ट्रिक्स का, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Okay students, here is the summary of today's lecture. We have discussed the tips on naming your blog. It should be simple and related to your theme. Next, we have debated the reasons if one should blog or one should not blog. Then we have seen the top 3 mistakes which should be avoided by any bloggers. Then we have seen how important it is to link your blog with the social media and other indexing platform. After that, we have seen the importance of moderating the comments and importance of comments in your blog posts. Then we have seen how to monetize your blog using affiliate market and pay per click ads. And in the end we have discussed about the target market, how to stay true to your identified target market. See you in next part.